Hello everyone, welcome back to the channel, and this is the fourth lecture of 100 question practice PD जो session we have already start. So this is the day 4 of question practice series of partial differential equation, and in the previous 3 lectures we already discussed 35 questions, and we in this lecture we starts from question 36 and onwards. Okay, so those who are not watching the previous lectures, you need to practice more questions of PD. You can see or you can watching the previous 3 lectures. I will share the link in the description and also here in the iTap. Okay, so let's start today's video or today's session. And before starting, and again one request that if you are like this content, then please give a like to this video, share with your friends, and feel free to subscribe, feel free to share with your friends. Okay, so let's start with question 35. The question says that the variable, just a minute, the variable xi and eta which reduce the differential equation del 2u del x2 plus minus x square del 2u del y2, this is equal to 0 to the canonical form what? Four options given है in terms of eta and xi. Okay, so let's first यहाँ पर क्या करेंगे, देखो. So if we write, if compare this equation with RR plus SS plus TT plus F X Y U P and Q, this is equal to 0. So this R means second order derivative with respect to X, partial derivative with respect to S. S means second order partial derivative with respect to X and Y, and T means second order partial derivative with respect to Y. Okay, and RS, capital T are the coefficient of these 3 terms. Okay, and from this we write the characteristic equation. What is the characteristic equation? Here the characteristic equation is lambda square R lambda square plus S lambda plus T, this is equal to 0. Okay, R lambda square plus S lambda plus T equal to 0. So now put the value of R, S and T. So R equal to here what? 1 into lambda square plus S means 0 into lambda plus T means x square minus x square, this is equal to 0. So this implies lambda square minus x square, this is equal to 0. So this implies lambda equal to plus minus x. Okay, so we get the value of lambda equal to plus minus x. So now put the value of lambda in the equation dy dx plus lambda, this is equal to 0, and putting the value of x lambda in this equation, we get the canonical transformation eta and xi. Okay, so now put plus x first. If we put lambda equal to plus x, then we get dy dx plus x, this is equal to 0, and this implies what? Simply dy plus x dx, this is equal to 0. So integrating we get what? Y plus x square by 2, this is equal to c1. ठीक है, तो देखो इसको सपोज हम लोग एक लेंगे ईटा या जाई, तो सपोज इसको now first find the another one. So lambda, if we put lambda equal to minus x, then dy dx minus x, this is equal to 0, and we get y. After integrating we get y minus x square by 2 equal to c2. Now we choose either these two, either one, xi or eta. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हो. सपोज दिस इज xi इक्वल टू चूज xi इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड ईटा इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. ठीक है, तो ये दो जो ऑप्शंस के रिगार्डिंग ये आंसर आ रहे हैं. मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. Question 37. Question 37. If the partial differential equation x minus 1 whole square uxx. So the given question is x minus 1 whole square uxx minus y minus 2 whole square uyy plus 2x ux plus 2y uy plus 2x y u, this is equal to 0, is parabolic in a subset of R2 but not in
R2 डिफरेंट एस, मतलब R2 से एस को हटा दोगे तो ये पैराबोलिक नहीं होगा। देन एस इज, एस क्या होगा यह फाइंड करना है, ठीक है। वी नो दैट इफ वी equate this equation with RR plus SS plus TT plus Fx y z u p q, this is equal to 0. We just need these three terms. Okay, the coefficient of the second order derivative partial derivative with respect to x, the coefficient of the second order derivative term with respect to x and y, and the coefficient of the third order second order derivative term partial derivative term with respect to y. Okay, सो यहाँ पर r क्या है, जो r जो है यू एक्स के एक्स है, मतलब r यहाँ पर है x माइनस वन का होल स्क्वायर। देन s मीन्स व्हाट, ये s टर्म्स यहाँ पर नहीं है, सो s इक्वल टू 0 एंड कैपिटल T इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 2 होल स्क्वायर। नाउ वी फाइंड, वी नो दैट इफ s स्क्वायर माइनस 4rt दिस इज इक्वल टू 0, देन दिस इज द पैराबोलिक type PD. Okay, so first we calculate s square minus 4rt, ठीक है। so s square minus 4rt means 0 minus 4 into r means x minus 1 square and minus of y minus 2 square. Okay, so this is equal to 4 plus 4 into x minus 1 square into y minus 2 square. Okay, so this will be 0 if and only or either x equal to what 1 or y equal to 2. Therefore this is not parabolic either if x equal to 1 or if x equal to 2. Okay, so in the question we have to find the s, मतलब यहाँ पे जो s होगा ये क्या होगा, r से s को डिफरेंट कर देंगे तो ये पैराबोलिक नहीं होगा। मतलब देखो, तो s क्या होगा ये निकालना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वो है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, बट इफ सपोज 1 केस ऑकर्स, मतलब x इक्वल टू 1 ऑकर्स, देन क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। बट क्या होगा, R2 से s को हटा देंगे, मतलब जो यहाँ पर आ रहा है R2 से s को हटा देंगे तो एक केस में ये 0 होगा, मतलब एक x को इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 0 होगा एंड x इक्वल टू y पुट करेंगे तो ये 0 होगा। तो देखो s क्या हुआ, s इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, ठीक है, R2, तो x इक्वल टू 1 होगा एंड y इक्वल टू 2 होगा। बट ये दो वैल्यू के लिए होगा कि वो एक वैल्यू के लिए होगा, मतलब यहाँ से एंड होगा या और होगा, ये अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो देखो इसलिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 लेंगे तो ये तो 0 हो रहा है, यहाँ पे बोला है कि x इक्वल टू 1 लेंगे तो s में ये पैराबोलिक होगा, मतलब ये वैल्यू हम ले सकते हैं, y इक्वल टू 0 होगा तब भी होगा, आइदर और पुट कर देंगे तो इसमें ये 0 हो जाएगा। बट if we subtract s, that is if we different R2 difference s, that means and either or case happens, then one case must be inside this case. That means in case x equal to 1 and y equal to, either one case will be inside in this, okay, R2 minus s, for that यहाँ पे and होगा, ठीक है, मतलब दो केस ही यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। R2 से दो डिफर करेगा, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, इस दोनों को टर्म की, मतलब दोनों कंडीशंस को ही हटाना होगा। देखो क्योंकि एक कंडीशन हटाओगे तो ये पैराबोलिक हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट पैराबोलिक की केस में इन दोनों को भी हटाना होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एंड होगा। तो देखो मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, question number 38 says that the characteristic curves of the equation x square, so the equation is x square u xx minus y square u yy is equal to x square y square plus x, x greater than 0, u xy are what, ठीक है, x greater than 0 है तो u xy are what। देखो u xy मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा
वो व्हाट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो निकालना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, इक्वेशन होगा लैम्डा के रिगार्डिंग, सो लैम्डा स्क्वायर प्लस आर लैम्डा प्लस एस दिस इक्वल टू 0 एंड आर का जो वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ दिस, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लैम्डा, सॉरी आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी, ठीक है। तो आर लैम्डा स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस टर्म्स यहाँ पे नहीं है तो 0 प्लस टी मीन्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो देखो नाउ जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डी वाई डी एक्स plus lambda this is equal to 0, so this implies if we put plus y by x then dy dx plus y by x this is equal to 0, that means what, x dy, so dy dx this is equal to minus of y by x, this implies x dy is equal to y dx, so x dy plus y dx this is equal to 0, this means d of xy this is equal to 0, that means xy equal to constant, which is clearly equation of rectangular hyperbola, okay. And now if we take lambda equal to plus minus 1 by x, so dy dx minus y by x is equal to 0, so this implies dy dx is equal to y by x, so this implies x dy, or you can take y x dy minus y dx this is equal to 0, so this implies if we divide both sides by x square then we get x dy minus y dx by x square this is equal to 0, and this means d of y by x this is equal to 0, that means y by x equal to constant, this implies y equal to x c2, this means this is an clearly equation of स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा एंड स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस ए एंड डी करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द पीडी, ठीक है। देखो तो पीडी का जो इक्वेशन हो लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2y इंटू यू एक्स एक्स प्लस वाई क्यू माइनस वाई प्लस यू इंटू यू वाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इंटू यू एक्स वाई प्लस 3 यू एक्स प्लस यू दिस इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर ऑफ पासिंग थ्रू 1 1 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू, इसका नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताना है, ठीक है। एक चीज़ देखो यहाँ पे हाइपरबोलिक की केस में 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, ठीक है, क्योंकि लैम्डा का जो रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लैम्डा आ रहा था वहाँ पे 2 रूट होता है, पैराबोलिक की केस में 1 होता है एंड इलिप्टिक की केस में नो होगा, मतलब रियल जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो नो क्या बोला कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो देखो यहाँ से आर का वैल्यू क्या है, आर इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2y, एस इक्वल टू है एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1, टी इक्वल टू है वाई क्यूब माइनस वाई प्लस यू। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जो मतलब इक्वेशन होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो लैम्डा स्क्वायर आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी दिस इक्वल टू 0, दिस मीन्स आर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 लैम्डा प्लस वाई क्यू माइनस वाई प्लस यू इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज पास थ्रू एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, सो एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा ये जो आएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, ये तो 0 आ जाएगा प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस यू मतलब सिर्फ 1 आएगा यू,
दिस इम्प्लाइज 3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ यू। तो इसका तो कोई रियल रूट नहीं बन रहा है, ठीक है। एंड इफ वी कांट गेट एनी रियल रूट देन दिस मीन्स दिस इज ऑफ, you can check also s square minus 4rt square minus 4rt, okay, this should be less than 0। ये लेस देन 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पे लैम्डा का कोई रियल रूट नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, इलिप्टिक टाइप पीडीवी होगा, ठीक है। मतलब इसका जो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होगा कैरेक्टरिस्टिक कर्व का वो होगा 0, ठीक है, कोई रियल रूट यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, नंबर 40 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलिप्टिक, लैप्लास इक्वेशन, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड यू एक्स एक्स प्लस 2 यू एक्स वाई माइनस 4 यू वाई वाई। फर्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ से हम लोग सभी जानते हैं कि जो लैप्लास इक्वेशन होता है वो इलिप्टिक होता है। लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, यू एक्स एक्स सपोज 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई दिस इक्वल टू 0 होता है। मतलब यहाँ पे कैलकुलेट एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है, एस स्क्वायर टर्म तो नहीं है, एस टर्म यू एक्स वाई टर्म नहीं है, मतलब 0 माइनस 4 इंटू आर मीन्स 1 इंटू 1, सो दिस मीन्स माइनस 4 विच इज क्लियरली लेस देन 0 एंड लेस देन 0 मीन्स इलिप्टिक टाइप, ठीक है। तो ये यहाँ से सीधा सीधा जो होगा लैप्लास इक्वेशन इलिप्टिक टाइप पीडी हो जाएगा। वेव इक्वेशन नहीं होगा, हीट इक्वेशन भी नहीं होगा। एंड जो ऑप्शन डी में गिवन है वो देख लेते हैं एक बार, यू एक्स एक्स प्लस 2 यू एक्स वाई माइनस 4 यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। एस मीन्स दिस, so s square means 4 minus 4, r means 1, t means minus of 4, this is equal to 4 plus 16 which is strictly greater than 0, which is a hyperbolic type equation not an elliptic। मतलब यहाँ से जो आंसर होगा वो होगा लैप्लास इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन गिवन जो है क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 जेड एक्स एक्स माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 जेड एक्स वाई प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 जेड वाई वाई प्लस जेड एक्स दिस इज इक्वल टू 0 is hyperbolic in the entire xy plane except, so इसका फर्स्ट एस स्क्वायर माइनस 4rt निकलते हैं, तो ये है क्या होगा आर एस टी, ठीक है। तो एस स्क्वायर माइनस 4rt मीन्स ये माइनस इसका अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4r मीन्स दिस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 एंड टी मीन्स दिस, ठीक है। तो y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर माइनस 1 टर्म यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, एंड 4x स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1, सो वाई स्क्वायर माइनस 1 टर्म देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ से एक y माइनस 1 होल स्क्वायर टर्म कॉमन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई यहाँ से लिख देते हैं एंड y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। देखो यहाँ से y माइनस 1 का एक होल स्क्वायर टर्म कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो y माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कॉमन जाएगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू क्या आएगा 4 इंटू वाई माइनस 1 वाई प्लस 1, ठीक है। तो ये आएगा, देखो नाउ ये टर्म ग्रेटर देन 0 होगा, कब होगा, मतलब यहाँ से हाइपरबोलिक के मतलब ये टर्म ग्रेटर देन 0 होगा। देखो ये जो टर्म है ये दोनों स्क्वायर है, मतलब इस दोनों तो पॉजिटिव होगा ही होगा, इस दोनों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये माइनस होगा, ठीक है। तो ना इस टर्म से मतलब है हम लोगों को, ठीक है। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y इंटू वाई प्लस 1 दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके।
देखो y प्लस वन टर्म ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा यहां से, अच्छा हाइपरबोलिक होगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब देखो इसको इक्वल टू जीरो कर देते, तो इक्वल टू जीरो में ये हाइपरबोलिक नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, y प्लस वन कॉमन लेके लेते हैं, y प्लस वन इंटू वाई प्लस वन माइनस फोर वाई, ठीक है। तो y दिस इक्वल टू जीरो एंड दिस टर्म तो कट जाएगा, तो क्या आएगा y माइनस थ्री वाई प्लस वन दिस इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये जो आएगा y इक्वल टू वन बाई थ्री। देखो एक टर्म आ गया y इक्वल टू वन बाई थ्री, इफ दिस इज टेक दिस टर्म टेक, देन देखो ये भी y इक्वल टू माइनस वन आएगा, मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आए, मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तब ये जीरो होगा, मतलब ये हाइपरबोलिक नहीं बनेगा। तो कब ये हाइपरबोलिक नहीं बनेगा, बनेगा जब दिस दिस इज नॉट hyperbolic if y equal to this means it is parallel to x axis, ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में ये हाइपरबोलिक नहीं बनेगा। ये कौन सा ऑप्शन है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, देखो क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़ा सारा इक्वेशन है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर बाई फोर इंटू डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस एक्स माइनस वाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई टू, प्लस जो टर्म है वो काम का नहीं है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ आर एस एंड टी से मतलब है, विच आर द कोएफिशिएंट ऑफ दिस थ्री डेरिवेटिव टर्म सेकंड ऑर्डर, ओके। सो देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, सो एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, so s means this term, so s square means x minus y whole square sin square x square plus y square, this is the s square term, minus 4rt means 4 into r means this term, ठीक है। देखो x minus y whole square by 4 rt, t means this term, into cos square x square plus y square, 4 से 4 cancel, and if we take common then x minus y whole square common, then sin square x square plus y square minus cos square x square plus y square, ठीक है। इस टर्म से तो कोई मतलब नहीं है, जो होगा इस टर्म से ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है क्या, साइन आ रहा है एंड कॉस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है वो है इलिप्टिक इन द रीजन एक्स वाई एक्स नॉट इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन पाई बाई सिक्स। तो इसको सबसे इजी जो तरीका होगा वो होगा ग्राफ से, ठीक है। साइन एंड कॉस का ग्राफ प्लॉट कर लो। देखो ये साइन का जो ग्राफ है सपोज, एंड जो इसका जो मतलब हाईएस्ट वैल्यू होता है साइन कॉस का, तो वो क्या होता है, वन होता है, वन एंड माइनस वन होता है, ठीक है। सब उस जो साइन का जो ग्राफ है वो यहाँ से पास करेगा, एंड कॉस का जो वैल्यू होगा क्या हुआ, वो कैसा होगा, ठीक है। एंड साइन का भी इस तरीके का होगा, ठीक है। देखो ये जो ग्राफ होगा ये होगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा, ये होगा पाई, ये होगा पाई बाई टू, ठीक है। एंड पाई बाई टू, ये जो पॉइंट होगा ये इस पॉइंट होगा पाई बाई फोर, ठीक है। यहाँ पर होगा थ्री पाई बाई फोर, ऐसे पॉइंट बनेगा, मतलब थ्री पाई बाई फोर नहीं, थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, ठीक है। तो ऐसे जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा। जो फर्स्ट ऑप्शन की मैंने बोला है कि इलिप्टिक इन द रीजियन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इलिप्टिक मतलब क्या है, ये टर्म जो है ये लेस देन जीरो, मतलब कॉस का वैल्यू ग्रेटर देन होगा। ये जो टर्म है देखो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है ना, तो ये लेस देन जीरो कब होगा, मतलब इलिप्टिक की केस में ऑप्शन ये वन हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन ए
देखो साइन स्क्वायर लेस देन कॉस स्क्वायर, जो अंदर का टर्म है वो तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 6। तो देखो एक्स स्क्वायर पाई बाई 4, यहाँ पर पाई बाई 6 का टर्म कहाँ पे यहाँ पर है सेंटर पाई बाई 4 का लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो देखो पाई बाई 4 का लेफ्ट साइड में है, तो ये जो है साइन का ग्राफ है, तो साइन का ग्राफ कॉस से नीचे है, मतलब पाई बाई 6 का इधर में 0 से पाई बाई 6 में देखो जो है कॉस का वैल्यू ऊपर है, मतलब कॉस का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा, मतलब ये जो इनइक्वालिटी गिवन है ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि पाई बाई 6 के लेफ्ट साइड में 0 से पाई बाई 6 में, ठीक है, देखो कॉस का ग्राफ जो है वो साइन से ऊपर है, मतलब कॉस का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू ज़्यादा मतलब ये जो इनइक्वालिटी है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा सीधा सीधा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या है देखो, ऑप्शन बी जो है बोल रहे हैं हाइपरबोलिक इन द रीजियन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो है पाई बाई 4 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो पाई बाई 4 ये ऑप्शन से, एंड 3 पाई बाई 4 यहाँ पर होगा शायद 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो देखो पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4 के बीच में क्या हो रहा है, देखो 3 पाई बाई 4, 1 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, सॉरी 3 पाई बाई 4 मतलब यहाँ होगा ना, पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 यहाँ होगा, सॉरी। तो 3 पाई बाई 4 देखो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 2 आता है, ठीक है, 45, एंड ये क्या हो रहा है 135 पाई बाई 2। तो देखो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में ये जो मतलब इंटरवल गिवन है, इसमें देखो एक पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में कॉस का वैल्यू साइन से नीचे है, एंड पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 में कॉस का वैल्यू साइन से, कॉस का वैल्यू तो नीचे है, एंड यहाँ पर इधर चला जाए, मतलब यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ये दो तरीका का कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये दो ग्राफ का पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में अलग होगा, एंड पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 में अलग होगा, ठीक है। तो ये तो कभी भी एक तरीका का मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 में ये ब्रेक करेगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 4 तक अलग होगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 तक ये अलग होगा, ठीक है। ये तो फॉल्स हो गया। सिमिलरली सी ऑप्शन देखो, इलिप्टिक तो नहीं बनेगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 में, इसी इंटरवल में इलिप्टिक तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टू टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होगा, एक में हाइपरबोलिक होगा एंड एक में क्या होगा इलिप्टिक होगा, दो तरीका का कैरेक्टरिस्टिक जो इंटरवल है यहाँ पे फॉलो करेगा। एंड हाइपरबोलिक इन द रीजन पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 में तो मैं डिस्कस कर ही दिया, वहाँ पे स्ट्रिक्टली इलिप्टिक बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, and if the solutions are helpful then let me do in the comment section below, comment जरूर करना मेरे को, एंड एक लाइक ऑब्वियसली दे देना। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 43 जो है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी प्लस डी डैश माइनस 2 इंटू डी माइनस डी डैश दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पर d इक्वल टू डी क्या है डेल डेल एक्स, एंड डी डैश इक्वल टू डेल डेल वाई। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए एक ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स क्या है मतलब रूल्स है। देखो रूल्स जो है इफ द कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो इक्वेशन है वो ऐसा है, एंड यहाँ पे z था सॉरी। तो देखो इफ d माइनस ए डी डैश प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर्म ऐसा है ऑपरेटर्स का, सॉरी यहाँ पे भी माइनस ऐसा फॉर्म है, देन क्या होगा यहाँ पे जो ए पार्ट ऑफ सी एफ होगा, पार्ट ऑफ सी एफ जो होगा ई टू द पावर बी एक्स इंटू फाइव ऑफ ई टू द पावर बी एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई प्लस ए एक्स, ये होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ सी एफ ऐसे बनेगा। तो देखो फास्ट जो है इस टर्म को लो, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करो तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस, बी का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ सी एफ क्या होगा होगा ई टू द पावर 2x जो होगा पार्ट ऑफ सी एक्स ई टू द पावर 2x इंटू फाइव ऑफ वाई प्लस एक्स, दैट मीन्स वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये होगा एक पार्ट, एंड और एक जो है डी माइनस डी डैश, इसके साथ कंपेयर करो इसको, तो क्या आ रहा है देखो ए इक्वल टू 1 आ रहा है एंड बी इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसके जो पार्ट ऑफ सी एफ होगा तो यहाँ पे पुट कर दो ई टू द पावर 0x इंटू फाइव ऑफ
क्या आएगा y प्लस एक्स, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू सिंप्लीफाई ऑफ y प्लस एक्स आएगा, ठीक है। तो देखो ये जो आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, इस दोनों ऐड हो जाएगा तो e टू द पावर 2x सपोज फाई ऑफ y माइनस एक्स प्लस फाई, ये दो अलग अलग फंक्शन लिख लो, यहाँ पे साई लिख लो, ठीक है। तो साई ऑफ क्या आएगा y प्लस एक्स, तो कौन सा आंसर है, अच्छा ठीक है। तो ये जो फंक्शन है देखो ऑप्शंस में y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स का फंक्शन एंड x माइनस वाई का फंक्शन मीन सेम, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस वाई लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन ऐसा है, अच्छा ए एंड डी दो ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो ए एंड डी दोनों आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे सेम ऑप्शन है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 44, देखो क्वेश्चन नंबर 44 का जो क्वेश्चन है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y del 2u del x2 प्लस x del 2u del y2 दिस इक्वल टू 0 इज हाइपरबोलिक इन द कौन कौन क्वाड्रेंट में जीरो हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट कर लो, सीधा सीधा ग्रेटर देन 0 होगा एस स्क्वायर माइनस 4RT, ठीक है। तो एस तो टर्म नहीं है यहाँ पर सिर्फ, तो 0 माइनस 4 इंटू आर होगा y एंड एस होगा x, ठीक है। तो दिस इक्वल टू माइनस 4xy, देखो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो इसको हाइपरबोलिक करना है मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो देखो माइनस एक है और एक माइनस लेना है, ठीक है। तो देखो इफ x ग्रेटर देन 0, इफ x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, तो माइनस यहाँ से एक माइनस आएगा एंड एक माइनस से दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और आइदर x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये दोनों केस ही होगा इसको ग्रेटर देन करने का, ठीक है, 0 करने का, ठीक है। तो देखो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन लेस देन 0 मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, ये तो प्लस प्लस होता है, मतलब x y दोनों प्लस है, एंड ये जो होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। तो देखो कौन कौन सा है, माइनस प्लस प्लस माइनस, मतलब सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा सेकेंड प्लस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए, तो इसका ए ऑप्शन सीधा सीधा करेक्ट, हाइपरबोलिक मींस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है गिवन है, देखो द जनरल सॉल्यूशन क्या है, डेल 2u डेल x2 प्लस डेल 2u डेल y2 इज इक्वल टू 0, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, तो इसका जो है देखो डी, ए मीन्स डी स्क्वायर एंड ए मीन्स डी डैश स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सिंपल ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं, डी इक्वल टू एम पुट करते हैं एंड डी डैश इक्वल टू 1, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या आएगा, इसका आएगा जो ये फॉर्म आएगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू यू दिस इक्वल टू 0, तो वी पुट द ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आएगा डी की जगह एम स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है, प्लस 1 दिस इक्वल टू 0, दैट मीन्स एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो प्लस माइनस आयोटा है जो है, तो आंसर कैसे लिखते हैं, y प्लस m1x प्लस साई y प्लस m2x, तो ऐसे लिखते हैं, या एक्स वाई को इंटरचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो आंसर कौन सा है, x प्लस आयोटा है, यहाँ पे देखो जो ऑप्शन से x प्लस आयोटा y की फॉर्म में गिवन है, तो देखो यहाँ से जो आएगा तो u इक्वल टू होगा एफ ऑफ x प्लस आयोटा y, यहाँ पे m1x प्लस m2y कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या आई पुट करो तो सेम ही आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस g ऑफ x माइनस आयोटा y, एक प्लस y एक आयोटा माइनस y होगा, ठीक है। यहाँ से एक m का वैल्यू प्लस आयोटा है एंड एक m का वैल्यू माइनस आयोटा है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, देखो द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन u xx प्लस u
यू एक्स एक्स प्लस जो है 4u(xy) प्लस cos x u(yy) प्लस जो है वो है, काम नहीं है, टू डिस्टिंग जो है इसका नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व कितना है वो बताना है। ठीक है, देखो फास्ट तो हम लोग AC² माइनस 4RT कैलकुलेट करते हैं। If this is hyperbolic, then there are two characteristic curve. If this is parabolic, then one characteristic curve, and if this is elliptic, then there are no real characteristic curve. Real की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो देखो AC² मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, 4 मीन्स 16 माइनस क्या है, u(x(x) का कोएफिशिएंट 1 है, एंड जो है 4 इंटू 1 इंटू इसका कोएफिशिएंट है cos x। ठीक है, तो दिस इज 16 माइनस 4 cos x, एंड वी ऑलरेडी नो दैट मॉड ऑफ cos x का वैल्यू जो होता है वो लेस इक्वल टू 1 होता है। तो इसका जो वैल्यू आएगा 4 cos x, इसका जो मॉड वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, लेस इक्वल टू 4 ही आएगा। 16 से 4 हटा दो तो क्या आएगा, ग्रेट मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो 4 होगा। तो ये AC² माइनस 4RT है, 4RT जो होगा ये तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, क्योंकि 16 से 4 हटाओ तो ग्रेटर देन 0 तो रहता ही है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हाइपरबोलिक आ गया, मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व यहाँ पे आएगा। कौन सा ऑप्शन है, फॉर एवरी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं आ रहा है एक्स एंड वाई पे। तो ठीक है, सिंस देयर आर नो कंडीशंस इन एक्स वाई, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो रहा है फॉर ऑल एक्स। सो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पासिंग थ्रू एवरी पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, मतलब जो ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 46 हो गया, 47 क्वेश्चन 47 का क्वेश्चन क्या है, देखो द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है u(x(x) प्लस x प्लस y u(xy) प्लस x² प्लस y² बाई 4 u(yy) प्लस डॉट डॉट, बाकी कोई काम का नहीं है। इलेप्टिक हाइपरबोलिक है ना, ऐसा ऑप्शन की बना। ठीक है, तो देखो AC² माइनस 4RT दिस इज इक्वल टू AC² मीन्स दिस टर्म, सो x² प्लस y² बाई 4 का होल स्क्वायर। सॉरी ये तो R है, ये है S, ये इसका जो कोएफिशिएंट है R एंड T। ठीक है, तो देखो AC² मीन्स 1² माइनस 4 इंटू R मीन्स 1 एंड T मीन्स x² प्लस y² बाई 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x² प्लस y²। ठीक है, 1 माइनस x² प्लस सॉरी एस का टर्म क्या है, एस तो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सो इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस x² माइनस y²। ठीक है, तो x² दिस टू टर्म कैंसिल, सो दिस इक्वल टू 2xy, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। 4 ऑप्शंस जो गिवन है वहाँ पे xy का ऊपर कंडीशन है, तो ये ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली xy ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो xy ग्रेटर देन 0 कौन सा ऑप्शन में है, हाइपरबोलिक इन xy ग्रेटर देन 0, ऑप्शन सी यहाँ पर क्लियरली करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, 48 इसका बाद होगा 48। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। ओके, 48 क्वेश्चन है द कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द PD। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, सिर्फ del 2u del x2 प्लस 2 del 2u del x del y प्लस del 2u del y2 इज इक्वल टू x e की पावर x प्लस y। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ये जो है d² प्लस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर on u, this is equal to x is equal to x plus y. So we put t equal to m and d dash equal to 1.
That means m square minus 2 into plus 2 into m into 1 plus 1 square, this is equal to 0. This is the auxiliary equation. That means m plus 1 का whole square, this is equal to 0. This means m equal to 1 comma 1, sorry minus 1 comma minus 1. ठीक है, जो इसका वैल्यू है वो है -1 comma -1, दो रूट्स है इक्वल रूट्स. ठीक है, तो देखो इक्वल रूट्स ऐसे आते हैं तो सी एफ कैसे लिखते हैं, सी एफ इक्वल टू तो वाई प्लस एम एक्स एम वन एक्स एम टू एक्स लिखते थे, तो सी एफ होगा 5 वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 5 वाई माइनस एक्स, ऐसे लिखते. ये 3 रूट होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, 5 वाई माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे. एंड नाउ ये हो गया सी एफ, तो इसका सी एफ प्लस पी आई कम्प्लीट इंटीग्रल होगा. तो पी आई इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर ऑन एक्स की पावर एक्स प्लस वाई. ठीक है, तो ए जो होता है फर्स्ट ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई फॉर्मेट में लिखो एंड इसका वैल्यू यहाँ पे मतलब डी की जगह डी प्लस 1 पुट करेंगे. देखो ए एक्स प्लस बी वाई ई की पावर ऐसे फॉर्म होता है, तो डी को जो लिखते हैं डी प्लस ए एंड डी डैश को डी डैश प्लस बी. तो ये जो होगा ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी प्लस 1 इंटू डी डैश प्लस 1 प्लस. एंड यहाँ पे ऑप्शंस देखो आप लोग, ये ऑप्शंस देखोगे तो एक ही ऑप्शंस है जिनमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस इस फॉर्म में है. ठीक है, तो इससे पार्टिकुलर इंटीग्रल करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑप्शंस डी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शंस डी ही अकेला है जिसमें इस तरीके का ऑप्शंस सी एफ गिवन है. ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो इसको. देन डी डैश प्लस 1 का होगा होल स्क्वायर ऑन एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट करो एंड एक्स का वैल्यू मतलब निकालो, तो इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो आएगा एक्स माइनस 1 बाई 4, जो ऑप्शंस पे गिवन है वही हम लिख रहे हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, यही आएगा. ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेक कर लो एक बार. ठीक है, यही आ रहा है कि नहीं आएगा, हम तो सिर्फ सी एफ को देख के ही बता दिया. ठीक है, आप लोग एक बार जस्ट चेक कर लेना. 48 हो गया. देन 49 देखो क्या कि मैंने क्वेश्चन नंबर 49 जो है, देखो द रीजियन एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है क्वेश्चन. देखो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डेल 2u डेल x2 प्लस, ये शायद गड़बड़ है. ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल 2u डेल x डेल y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल 2u डेल y2 दिस इक्वल टू 0. यही होगा शायद, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो देखो इसका एस मीन्स दिस टर्म एस टी आर, तो एस स्क्वायर माइनस 4rt दिस इक्वल टू क्या हो रहा है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर मीन्स एक्स स्क्वायर, टी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये टर्म, तो 4 इंटू कॉमन ले लेते जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर. फार्मूला कौन सा है, जो फार्मूला होगा 4ab का फार्मूला है, मतलब ये आएगा 4 इंटू 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिम्प्लाइज 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. एंड ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 16 एक नंबर है, एक्स का होल स्क्वायर मीन स्क्वायर होगा, एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो एंड वाई का केस में भी वही वाई कुछ भी हो तो ये पॉजिटिव ही हो, तो ये ग्रेटर देन 0 हो रहा, मतलब क्या होगा ये हाइपरबोलिक. ठीक है, मतलब ऑप्शन है डी. देन क्वेश्चन नंबर 50, देखो 4 सेशन यहाँ पे प्रैक्टिस किए हम लोग एंड 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, पिक द रीजन इन व्हिच द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक. क्या है हाइपरबोलिक में क्वेश्चन है वो है वाई यू एक्स एक्स
प्लस 2xy uxy इज इक्वल टू ux प्लस uy। तो देखो यहाँ पे y टर्म गिवन नहीं है, ये होगा r का वैल्यू एंड ये है s का वैल्यू, तो एस स्क्वायर माइनस 4rt, r का वैल्यू कुछ नहीं है मतलब r का वैल्यू है 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर मीन्स 4x² वाई स्क्वायर सिर्फ आएगा, माइनस 4 इंटू आर टी का नाम आर तो नहीं है, सॉरी टी तो नहीं है, मतलब टी का जो होगा वो 0 होगा, तो यही आएगा। ये तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये भी हाइपरबोलिक, ठीक है। तो इससे कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे निकलना है। तो देखो ये 0 ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब एक्स वाई नॉन जीरो होगा, ठीक है। एक्स वाई ग्रेटर देन 0 नहीं सिर्फ, ठीक है, एक्स वाई लेस देन 0 से भी में भी होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स क्या है? एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स वाई कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, स्क्वायर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे हम लोग का कोई यहाँ पे मतलब ये जो है ग्रेटर देन 0 का कोई कंडीशंस नहीं हुआ ऐसे, ठीक है। तो एक्स वाई नॉन जीरो होगा मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो यहाँ पे ये होगा एक्स वाई नॉन जीरो, मतलब जो है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। सो द फोर्थ लेक्चर वी डिस्कस्ड अप टू क्वेश्चन 50। सो फोर्थ लेक्चर में टोटल वी आर डिस्कस ऑलरेडी डिस्कस 50 क्वेश्चंस इन जस्ट 4 सेशंस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, और क्या बोलेंगे। तो इफ द कंटेंट इज हेल्पफुल, लाइक टू दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe the channel. Thank you friends, see you again in the next video. Thank you.